Okay. Hi, Utkarsh, Supriya, Rekha. Okay, that's nice. Chalo. So we'll start with introduction and then maybe we can continue. जो हमारा like whatever we are learning, right? Okay, आज हम यहाँ सीखने आ रहे हैं और we are meeting here or we are going to start a Excel from data analytics perspective. Okay. Clear everyone? So let me start with my introduction. My name is Kapil. I have been with NMD from past 6 months and completed around 5 to 6 batches, I guess. Yeah. A little bit about my professional life. Uh, been completed my engineering from COEP, College of Engineering, Pune, and post that I joined Bosch and then government organization. Currently, I'm working with the Phoenix Group. तो अभी मैं फिनिक्स ग्रुप करके एक कंपनी है उसके साथ काम कर रहा हूँ एंड दे आर स्पेशलाइज इनटू डेटा एनालिटिक्स टूल डेटा एनालिटिक्स एज अ प्रोडक्ट सो उनका खुद का डेटा एनालिटिक्स का प्रोडक्ट है एंड आई एम करेंटली वर्किंग देयर एज अ डेटा साइंटिस्ट so currently promoted from data analyst to data scientist. Okay, and majorly we work in the supply chain, logistic related domains, operations. उससे related है, and it's been 6 years in the data field, data related field. Okay, ठीक है. So I want to know आप लोगों के बारे में. Maybe we can have a quick introduction. Name, fresher है, working है. Why you are doing data analytics? Okay, what motivated you to do the data analytics? Clear? Let's start. Maybe Dheeraj can start. Yes, sir. Sir, my name is Dheeraj Sudhir Kokande. I am from Nasik. I completed my degree B Electrical in Gokhale Education Society College of Engineering. Sir, in this field, sir, there is a lot to learn, and thinking about future, this field has a long way to go, and salary packages are good in this field industry. Okay. Yes, sir. So, and are you currently fresher, working? How is it? No, sir, I am currently working. Working as? I have yes, I have 4 year experience in my department, quality officer Okay. in electrical company. So it's a electrical which domain? Sir, I am a quality officer. It's a sheet metal manufacturing company. Okay. Okay. Nice. Even I worked as a procurement for sheet metal. So I was my specialization was for a sheet metal. So I used to procure a sheet metal. Okay, I Okay, know a lot sir. of people who are my supplier in Pune. A lot of companies I know who are into a sheet metal. Okay, that's nice. Good. So maybe you can do a quality analytics or quality analyst as a project where you can identify past records, trends, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, next, Deepak. Actually, sir, my name is Deepak Pancha. Basically, I'm from Buldana, but last from 2.5 years, I'm staying in Baliwadi, Pune. Okay, Uh, okay. uh, about my experience is that I have total 3 years of experience in sales as a sales manager. Basically, it's a realistic field. Okay, Yes. okay. So that's why I want to shift in IT. So that's why I choose the data analytics course. Okay, nice. And currently, as a sales, you are working with Yes. BSNL. Yes. Yes. Okay, that's nice. And what motivated you to start the data analytics? I think easy to learn, and there is no
lots of coding knowledge required. So that's why. Okay, but you need to continuously learn new Yes. things. Yeah. It's not a stable job. Stable as in every 2 years you will have new technology. Yes. Yes. Okay, nice. That's good. Deepak. Next, Mahesh. Yes, Mahesh, you can introduce yourself. Tell us more about you. My name is Mahesh Patil. Mm-hmm. I have done Bachelor of Engineering in Electronics and Telecommunication. Okay. Currently, I am working as an electronics R&D engineer in Pune. I am basically from Pune itself, Okay. and I have 4.5 years experience as an electronics engineer. Mm-hmm. But basically, I am interested in hardware and software both. So that's why I have selected this data analyst as my work professionalism in my life. And there is also some chances that we can groom our life and our profession also. That's why I chosen this, sir. Okay. There are so many things that we can learn. We can grow. Grooming industries are there. That's Okay. why I chosen this field. Okay. That's nice. That's nice. So if you like learning, then there is sky is the limit. So, right? Every Yes, two yes, years you will exactly. get new technologies, new tools, and if you master the skill of learning new things, then you can have unlimited potential here. Okay? Yes, sir. Yeah, Thank you. that's nice. Yes, yes, Rekha. Hello, hi sir. My Yeah, name is hi. Rekha Tadakle. I'm basically from Pune and currently I'm working. I have graduated in computer science. I have total 3.8 years of experience, and previously I worked with emphasis. It is 2.8 years of experience and 1 year of experience in IBM as a KYC analyst. I work with IBM and currently I'm working in EXL, and I Okay, want to switch my career in data analyst. okay. EXL, is it? Yes, it is in Nagarpata. Okay, okay, and that's nice. You have a fair bit of understanding. So Yes, you have easy like you can apply in MPhIS and uh, all two organizations may hire a lot of data analysts. I have seen many ads, job ads from MPhIS and one more company which you mentioned, right? Okay, yes, sir. okay, that's nice. Yes, Sanket, you can go. Yeah, you can start now. Hi, sir. Um, I'm Sanket Sudham Kirve. I've completed mechanical engineering after I've done CDAC. Then after I've working in Tech Mahindra since 2 years as a Magento. Recently, I've to do career in data analytics, data science. So I've gone searching here. Okay, but why you want to do the career in data analytics? Now there is no jobs in Java or no growth in Java. So I've done course on data analysis. Okay. Are you sure? Because if you simply search Java developer in LinkedIn or on Google, there are a lot of open positions, right? Yes, sir. I've searching since 3 months. So Hmm. You need to be more, more, what I say, specific about why you are doing something. Okay. yes, ऐसा नहीं कि आपको ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि वहां स्कोप नहीं है इसीलिए आप ये कर रहे हो कल जाके इसका स्कोप खत्म हो गया तो आप और कुछ दूसरा करोगे और कुछ तीसरा करोगे राइट सो दैट yes. दैट थोड़ा वो रॉन्ग इम्प्रेशन भी चला जाता है सो यू Okay, नीड टू बी पॉजिटिव ओके
you need to indicate something positive or some skills. Maybe you can say, I handled a lot of data during my previous work. Okay. Yes, yes. And I realized that is my strength, and that's why I want to learn more about data analytics. That Okay. can be one of the reasons. You Yes, need to sir. show hope and positivity every time. Okay, you cannot Yes. say negative about anything. Yes, sir. नेगेटिव नहीं बोलना है किसी के बारे में, किसी के टेक्नोलॉजी के, मतलब किसी टेक्नोलॉजी, किसी प्रोफाइल, राइट? ऐसा नहीं कि Yes, sir. आपको जॉब नहीं मिल रहा है मतलब जॉब बहुत कम है, हो भी सकता है, बट Mhm. इतना इतना भी सच नहीं बोलना है. ओके, Yes, sir. Yes, हमेशा sir. हमें सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं तो पॉजिटिविटी दिखाना है. ओके Yes, sir. ओके ओके, दैट्स गुड. या, व्हाट अबाउट उत्कर्षा? हाय उत्कर्षा, you can introduce yourself. उत्कर्षा और उत्कर्ष? Okay, looks like he has. Okay, he's not available, I guess. Okay, not an issue. So that's nice. I see a lot of you guys are working professionals, and maybe you, whatever we are going to learn, you can use in your day-to-day life, so that you can practice as well as you don't have to remember anything. Okay, मतलब आप, हम जो सीखने वाले हैं ये आपके कोर्स करियर में आप यूज करोगे तो इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा, एंड आपको प्रैक्टिस. Hi, sir. I'm so sorry. Actually, I'm out of my house and I'm not able to speak right now. Okay, okay, so you are or you are stuck in rain, right? Maybe you can't use that. Okay, Sure, sir. okay, okay, not an issue. So make sure you watch the recording and then continue. Sure, sir. Thank you. Thank you. चलो, तो हम आज जो सीखने वाले हैं, लाइक आज से जो हम सीखने वाले, दैट इज कॉल्ड एक्सेल. एक्सेल ये बहुत वर्सटाइल टूल है और जनरलाइज टूल भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि हर एक कंपनी में, हर एक प्रोफाइल में आपको एक्सेल यूज करना पड़ता है. मोस्ट ऑफ यू माइट हैव यूज्ड एक्सेल आल्सो. ओके, तो हम आज से जो शुरू करने वाले एक्सेल, वो एज अ डेटा एनालिटिक्स पर्सपेक्टिव से शुरू करने वाले हैं. ओके, मेजरली हमने आज तक जो एक्सेल पढ़ा है वहां पे सिर्फ आपने कैलकुलेशंस के लिए यूज किया होगा और कई फॉर्मूला वगैरह लिखा होगा. ओके, बट हमारा ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशंस करना, फॉर्मूला लिखना ये नहीं है. हमारा ऑब्जेक्टिव है, फ्रॉम एज अ डेटा एनालिस्ट, हमारा प्राइमरी काम रहता है टू फाइंड इनसाइट्स एंड प्रोवाइड एक्शंस. ओके, इनसाइट्स मतलब क्या और एक्शंस मतलब क्या? जो भी एज अ, आप जब भी इंटरव्यू वगैरह दोगे और आप किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे, सो एज अ डेटा एनालिस्ट आप, आपका प्राइमरी काम और प्राइमरी लाइक वर्क ऐसा रहेगा कि आपको बहुत ज्यादा डेटा रहेगा आपके सामने. डेटा इज इन नथिंग बट रोज एंड कॉलम्स, राइट? और उस डेटा को अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है, और उसे पूरे डेटा को मिनिमम वर्ड्स में हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो आपको बताना है. मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ब्रांच मैनेजर है एक बैंक में. ओके, बैंक में हर रोज बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, मे बी लैक्स एंड लैक्स, राइट? बहुत सारे अकाउंट्स रहते हैं, 1000 2000 3000 लोग आपके ब्रांच में अकाउंट, मतलब अकाउंट होल्डर है, एंड देन उनके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं. बट एट द एंड, जब भी आपका दिन खत्म होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट, ऐसे कौन से आपके जो कस्टमर्स है और अकाउंट होल्डर है जिनके अकाउंट में मैक्सिमम पैसा है, लाइक टॉप 10 कस्टमर. इससे क्या होगा, आप ये लोगों को एफडी करने के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं. एफडी करने के लिए, नहीं तो आप उनको बोल सकते हो कि क्रेडिट कार्ड लो, नहीं तो पर्सनल लोन का ऑफर, व्हीकल लोन का ऑफर, सम डिफरेंट प्रोडक्ट आप उनको सेल कर सकते हैं. ओके, तो ये किस वजह से पॉसिबल है? बिकॉज आई अंडरस्टूड कि ये
जो भी मेरे अकाउंट होल्डर है उनका प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल मतलब उनके ट्रांजैक्शंस कैसे है, कितने वॉल्यूम के ट्रांजैक्शंस है, मतलब वो 5 5 रुपए 10 रुपए भेजते हैं या 10,000 20,000 ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं। मिनिमम अकाउंट बैलेंस कितना रहता है उनके अकाउंट में, 10,000 रहता है, 10 लाख रहता है। तो उसके बेसिस पे आप उनको लोन का ऑफर दे सकते हो, व्हीकल लोन, रियल एस्टेट, क्रेडिट कार्ड, अलग अलग लोन के ऑफर दे सकते हो। ये सब क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आपने पूरा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, पूरा जो डेटा जनरेट हो रहा है बैंक में, उसे आपने एनालाइज किया और समराइज किया है विद इन फ्यू पॉइंट्स। जैसे हमने समराइज किया कि टॉप 10 कस्टमर्स, सो ऐसे ही जो भी हम समराइज कर रहे हैं पूरा डेटा को, इसको बोलते हैं इनसाइट्स। ओके, like you have a large like volume of data and you said current transactions in my bank or top 10 customer who are transacting more, or maybe the maximum the person who is not spending at all, like maximum amount lying in his account or inactive account, okay, और लोवेस्ट बैलेंस किसके अकाउंट में है, ये सारी चीजें आप फाइंड आउट कर रहे हो एट द एंड, दीज आर नथिंग बट इनसाइट्स, राइट। मतलब आप एक पूरा डेटा देख रहे हो और फिर समराइज कर रहे हो विद इन फ्यू बुलेट पॉइंट्स। इसका फायदा क्या होगा? एज अ ब्रांच मैनेजर और एज अ ब्रांच वो कस्टमर को अलग अलग ऑफर्स दे सकते हैं, सो दैट बैंक का बिजनेस और बढ़े। बैंक के पास क्रेडिट कार्ड के कस्टमर नहीं है तो क्रेडिट कार्ड बेच सकते हैं, राइट। ऐसे डायरेक्टली रैंडम लोगों को बेचने के बजाय जो लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है और आपको पता भी है, तो उनको बेचने से आपका सेल जल्दी हो जाएगा, राइट। Clear everyone? So this is action. Action, we can call it as, we can sell different products, we can sell credit cards, we can give better offer of personal loan who are maintaining minimum balance, something like this. So this is your day-to-day job, like finding insights and suggesting actions to business owners. One more example है जैसे स्टोर्स का। कहीं आपने मान लीजिए आपका डीमार्ट जैसा एक सुपर स्टोर है आपका और बड़ा शॉप है, उसमें से आपको निकालना है कि कौन सा प्रोडक्ट है जो सेल नहीं हो रहा है, नॉन मूविंग आइटम्स। तो आपने एक महीने का डेटा लिया, उसमें से आपने ट्रांजैक्शंस कितने हो रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट जल्दी बेच रहा है और बिक रहा है, ये देखा, right? You understood what product we are selling, how is the movement, how is material movement, then you figured out कि something XYZ product is not moving at all, मतलब 10 दिन में एक कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेता है, मतलब ये स्लो मूविंग आइटम है, तो इसे हमें निकाल देना चाहिए बिकॉज दैट इज नॉट प्रॉफिट मेकिंग। तो ये हो गए इनसाइट्स। Action is I can remove that product is a action, or I can give more discount on that product, तो ये हो गया action. So clear everybody? आपका as a data analyst what is your task? As a data analyst आप क्या करोगे day in and day out? This is what most of the times you will do it. Okay? इसका ये अलग से लोग बोलते हैं KPI डिजाइन करना, KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि टॉप 10 कस्टमर, जैसे वैसे ही टॉप 1 कस्टमर को आपको दिखाना है तो दैट बिकम्स अ KPI। ओके, सेल्स और स्टोर का एग्जांपल लीजिए, टोटल सेल्स डन इन द प्रीवियस मंथ, ये हो गया KPI। और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मतलब मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, ये मुझे 3 या 4 बुलेट पॉइंट्स के साथ पता चलेगा। मेरा सेल बढ़ रहा है, ओके, आपने शो किया ईयर ऑन ईयर और मंथ ऑन मंथ इंक्रीज इन सेल इज 5%, मतलब लास्ट ईयर से इस महीने सेल्स बढ़ा है मेरा 5% से, तो इससे क्या पता चलेगा कि माय बिजनेस इज ग्रोइंग। आपने इंडिकेट किया मंथ ऑन मंथ सेल इज -20%, मतलब लास्ट मंथ में मैंने 1000 रुपए का सामान बेचा है तो इस महीने में 800 रुपए का बेच रहा हूँ, मतलब मैं माय बिजनेस इज गोइंग डाउन, तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा बिजनेस के ऊपर।
So this is nothing but a job of data analyst. Clear? समझ में आ रहा है सबको? What is your primary task? Yes, no? Yes, sir. ओके ग्रेट. सो ये टास्क कंप्लीट करने के लिए टू फाइंड इनसाइट्स एंड प्रोवाइड एक्शनेबल स्टेप्स टू बिजनेसेस हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं. उससे सबसे पहला टेक्नोलॉजी है विच इज एक्सेल. एक्सेल इज नथिंग बट अ टूल और अ टेक्नोलॉजी वी कैन से. एंड देन पावर बीआई है, एसक्यूएल है एंड पाइथन. ओके क्लियर? एंड ऑब्जेक्टिव इज सेम, सबका एंड ऑब्जेक्टिव सेम है कि आपको इंसाइट्स निकालना है एंड एक्शंस देना. इंसाइट निकालना, आप डैशबोर्ड बना के भी इंसाइट निकाल सकते हो. जैसे आप लोगों का पावर बीआई कंप्लीट हुआ होगा तो आपने डैशबोर्ड्स बनाए होंगे. तो डैशबोर्ड बनाने का अल्टीमेट पर्पस क्या है? एज अ बिजनेस ओनर मुझे मेरे बिजनेस के बारे में बताओ, मतलब पता चलेगा, राइट? ग्राफ देख के, बार चार्ट देख के, लाइन चार्ट देख के. क्लियर? एंड एसक्यूएल जो डेटा हम पावर बीआई को कनेक्ट कर रहे हैं उसको इफिशिएंटली कनेक्ट करने के लिए एसक्यूएल, राइट? अंडरस्टूड? देन विल कम टू द एक्सेल. हम एक्सेल क्यों पढ़ रहे हैं देन? बिकॉज पावर बीआई भी है, वो ज्यादा एडवांस टूल है अदर देन एक्सेल, मतलब एज एन एक्सेल से भी एडवांस टूल. So why we are learning Python then? Oh, sorry, why we are learning Excel then? So purpose of learning Excel is whatever tools you are going to learn such as Power BI, SQL, Python, these are called specialized tools. ये special conditions में ही use होता है. Special conditions. What are special conditions? मतलब आपके पास करोड़ों के लाइन में डेटा है और lakhs and lakhs of rows are available. lakhs and lakhs of rows आपके पास है, उतना बड़ा डेटा है, then you can use Power BI और SQL और Python, right? मान लीजिए आपके पास सिर्फ 10 लाइन का डेटा है, तो will that make any sense to use Power BI? यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट that is too powerful for that purpose. तो इसीलिए हम क्या करते हैं उस केस में एक्सेल यूज करते हैं. Whenever you have very small amount of data or small request or minimum request, तो आप लोग एक्सेल यूज कर सकते हैं. This is one of the use case. Other and very important use case is you can build a POC in Excel. POC मतलब proof of concept. Proof of concept मतलब let's understand with the example. मान लीजिए आपने एक नई गाड़ी खरीदी है. ओके अभी सीख रहे हो आप, you are just learning new vehicle and you bought some car. Let's say you bought Audi A6. ओके Audi आपने खरीदा है और आपको इतनी अच्छी गाड़ी चलानी नहीं आती. क्या आप डायरेक्टली नेशनल हाईवे जो मुंबई एक्सप्रेस है और समृद्धि एक्सप्रेस वे पे चलाओगे, या पहले आप प्रैक्टिस करोगे विद इन द सिटी चला के और ऐसे प्लेन रोड पे वगैरह चला के? क्या करोगे आप लोग? यस. Practice. So you will practice, you will learn और you will understand कि ऑडी कैसे चलता है, क्या फंक्शनैलिटीज है, क्या फीचर्स है, राइट? 4 व्हील ड्राइव क्या रहता है, 2 व्हील ड्राइव क्या रहता है, कौन से बटन प्रेस करने से इंडिकेटर लगता है, कौन से बटन प्रेस करने से वाइपर चलता है, राइट? नहीं तो बारिश हो रहा है और आपको कुछ सामने का दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे वर्क होगा क्या? नो, राइट? यू विल नॉट वर्क. सो यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे फंक्शनैलिटी वर्क होता है, रिक्वायरमेंट क्या है, राइट? एंड देन यू विल यूज और यू विल गो ऑन एक्सप्रेसवे, हाईवे पे आप चलाओगे एंड देन यू विल फील कंफर्टेबल. So similarly, whenever you are handling a data, large volume of data you cannot handle immediately. मतलब 10 लाख रोज है, 10 लाख रोज है और 50 कॉलम है. This is general, this is how it will be in the real world.
तो आपको पहले तो समझ ही नहीं आएगा कि डेटा में चल क्या रहा है। इतने कॉलम एक स्क्रीन में नहीं बैठेंगे, 50 कॉलम के नाम आपको याद नहीं रहेंगे, राइट? So that's why what people do is they take sample from large data. मतलब आपके पास 10 लाख जो रोज है उसमें से कुछ सैंपल वगैरह कलेक्ट करके पाइथन और सॉरी एक्सेल में आप उसे कॉपी कर लीजिए एंड एक्सेल में ऊपर आप ऑपरेशन कर सकते हो जो भी आपको करना है। आपको कुछ डेटा क्लीनिंग करना है, कुछ कॉलम्स डिलीट करना है, कुछ ग्राफ्स बनाना है, विजुअलाइजेशन बनाना है, ये सब कुछ जो भी आपको करना है ऑपरेशंस, वो ऑपरेशंस आप करते हो एंड देन यू टेक अप्रूवल फ्रॉम योर सीनियर्स और योर क्लाइंट। क्लाइंट मतलब जिसके लिए आप काम कर रहे हो, राइट? एक बार आपके मैनेजर्स ने, क्लाइंट ने अप्रूवल दे दिया, ठीक है ऐसा आप कर सकते हो, देन यू कैन यूज स्पेशलाइज्ड टूल्स सच एज एसक्यूएल, पावर बीआई, फिर उसमें आप डैशबोर्ड बिल्ड कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? सो ये जो हम इनिशियली चेक कर रहे हैं डेटा को कैसे है, क्या है, ब्लैंक है क्या नहीं है, राइट? और नल वैल्यूज है क्या, निगेटिव वैल्यूज है क्या, पॉजिटिव वैल्यूज है क्या, टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है, everything we will check and we'll understand exactly what is happening in the data, and then we will go to highway, as in we'll use a Power BI to build complex logics, calculation, DAX, and then dashboard. Clear everyone? आप एक्सेल क्यों सीख रहे हैं ये क्लियर है सबको? Yes, sir. What about others? दीपक, महेश, रेखा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, संकेत, उत्कर्षा, होप यू, बिकॉज क्योंकि एक्सेल सीखना ये कुछ बड़ी बात नहीं है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बट क्यों सीख रहे हो ये समझिए पहले। ओके, ये एक बार समझ में आया हम क्यों सीख रहे हैं, देन प्रैक्टिस करना सीखना इट्स बिकम इजी। यू शुड नो व्हाई यू आर लर्निंग समथिंग, देन यू कैन लर्न इजीली। आपको पता ही नहीं है आप क्यों सीख रहे हो, इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? So hope with this introduction we are going to start with Excel. So let me share my screen and continue. Okay, by the way सब लोग लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हैं, hope nobody is joining from mobile because that is not advisable. आपको दिखाई नहीं देगा कुछ और आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। साइमल्टेनियसली मेरे साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते, मैं जो कर रहा हूं आप लोग कर सकते हो पैरेलली, नॉट एन इशू। ओके, लेट मी नो वंस माय स्क्रीन इज विजिबल। Yes, sir. माय स्क्रीन ओके, ठीक है चलो। सो जो एप्लीकेशन आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, दिस इज नथिंग बट एक्सेल। ओके, ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। माइक्रोसॉफ्ट हैज मेनी टूल्स सच एज पावर बीआई, वर्ड, PowerPoint. Excel is one of such tools. Okay, and basic use of Excel is mostly we use Excel for calculations. Not only this, to store the data or to clean the data. Not only this, visualization के लिए भी हम Excel use कर सकते हैं। इसके आगे जाके automation कर सकते हैं Excel में, that is also possible. So by and large you can do everything in Excel. जो डेटा एनालिटिक्स के लिए लगता है सब कुछ आप एक्सेल में कर सकते हो। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ जनरलाइज्ड टूल। वैसे पावर बीआई में सब कुछ नहीं कर सकते आप, मोस्टली कैलकुलेशंस एंड विजुअलाइजेशन कर सकते हो। पावर बीआई में डेटा स्टोर नहीं कर सकते आप और कुछ फॉर्म वगैरह नहीं बना सकते, ऑटोमेशन वगैरह का इशू रहता है। सो दैट इज अ स्पेशलाइज्ड टूल। एसक्यूएल, एसक्यूएल क्या करता है, RDBMS में डेटा स्टोर होता है, SQL क्वेरी करने के लिए यूज होता है, राइट? अगेन दैट्स अ स्पेशलाइज्ड टूल।
पाइथन क्या करता है, टू हैंडल लार्ज डेटा फॉर डेटा क्लीनिंग, मोस्टली डेटा क्लीनिंग करके वापस एक डेटा बेस में वो इंसर्ट कर देता है. So again, specific requirement, right? So Excel is in and out is a generalized tool. ये generalized है क्योंकि इसके सारे applications आप use कर सकते हो in the data analytics field. So we'll start with the basic. Excel में आप जो यहाँ पे हो, this home, page layout, insert, formulas, date, review, these are nothing but tabs. इनको बोलते हैं tab, okay? ये हो गया होम टैब, पेज लेआउट टैब, इंसर्ट टैब. इफ यू ऑब्जर्व, ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये ऑप्शंस भी चेंज हो रहे हैं. ये जो नीचे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं. टैब कर देता हूँ, ये देखिए, है ना. जो मैं आपको बोल रहा था ना, वर्सटाइल टूल है. वर्सटाइल टूल इज, यहाँ से हम डेटा स्टोर कर सकते हैं फ्रॉम होम टैब. होम टैब जनरली डेटा नहीं तो मैनिपुलेशन और फॉर्मेटिंग के लिए. पेज लेआउट में मार्जिन वगैरह है, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, आपको कुछ फॉर्म वगैरह बनाना है एक्सेल में, थीम सेट कर सकते हो, कलर सेट कर सकते हो. ओके. जो मैं आपको बोल रहा था चार्ट, ये देखिए यहाँ से चार्ट प्लॉट कर सकते हो, अलग अलग चार्ट, डेटा विजुअलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे, राइट. एंड देन फॉर्मूला लगा के देखिए कैलकुलेशन, यहाँ से आप सब लोग कैलकुलेशन यूज कर सकते हो. ये अलग अलग फॉर्मूलाज है यहाँ पे. ओके. लुकअप है, दिस इज इन द फॉर्मूलाज टैब. डेटा टैब में क्या है, इसमें भी अलग अलग एप्लीकेशंस है. यहाँ पे आप व्हाट इफ एनालिसिस है, वो जो हम देखने वाले हैं, डेटा एनालिसिस है, सॉल्वर है, राइट. देयर इज समथिंग कॉल्ड सॉर्ट, फिल्टर, ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल. रिव्यू में क्या है, स्पेलिंग चेक, ग्रामर चेक, एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर. आपको कुछ पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है एक्सेल, दैट इज आल्सो पॉसिबल हियर, प्रोटेक्ट शीट, ऑल दोस थिंग्स. सो बाय एंड लार्ज सारे एप्लीकेशंस आप एज अ डेटा एनालिस्ट जो भी आपको लगेगा वो एक्सेल में कवर्ड है. ओके. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जनरलाइज्ड टूल्स. सो वी आर गोइंग टू लुक एट वन बाय वन ऑप्शंस हम देखेंगे. बिफोर लेट मी चेक व्हाट इज दिस. ये जो मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? एनीवन हैज एनी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज अबाउट दिस? So this is nothing but a cell. इसको बोलते हैं सेल, CELL, सेल. ओके. एक सेल है ये, एक्सेल का एक सेल है. और इस सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, इट कॉल्ड C4. दिस इज नथिंग बट अ एड्रेस. सेल का एड्रेस है ये, जैसे आपके घर को एड्रेस रहता है, राइट. शक्ति निवास, भक्ति निवास, जो भी है, फ्लैट नंबर 1010, 1001, जो भी है. So this is nothing but address. So Excel भी ऐसे ही एड्रेस देता है हर एक लोकेशन को. ओके. एंड इफ यू ऑब्जर्व, ये मैंने जो हाईलाइट किया है, दिस इज कॉल्ड अ कॉलम, राइट. एंड इफ आई हाईलाइट दिस वन, दिस इज कॉल्ड रो. ये रो है, कॉलम है. रो एंड कॉलम को मैं कंबाइन करता हूं तो आई गेट अ टेबल, राइट. क्लियर एवरीवन? दिस इज जस्ट अ बेसिक. एंड देन ये जो शीट 1 लिखा आ रहा है नीचे, और ये शीट 1 के अंदर ये सारे जो डिटेल्स दिख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट अ शीट. इसको बोलते हैं वर्कशीट. ये एक शीट है. ऐसे आप बहुत सारे शीट्स बना सकते हो यूजिंग दिस ऑप्शन. ओके. देखिए, शीट 3, शीट 4, शीट 5, शीट 6, 7. ऊपर के ऑप्शन रहेंगे बट नीचे आप अलग अलग डेटा कर सकते हो. यस महेश, do you have a question? No, sir. ओके. ओके, चलो क्लियर. और इस शीट, जो भी शीट आपको दिख रहा है, ये शीट को आप नाम भी दे सकते हो अलग अलग. मान लीजिए आप HR डिपार्टमेंट में काम करते हो. ओके. तो HR के पहला रहेगा बेसिक डिटेल. बेसिक डिटेल रहेगा एम्प्लॉय का. बेसिक में क्या रहेगा, मेरा नाम रहेगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा, राइट. बेसिक मार्क्स और 10th मार्क्स, 12th मार्क्स, जो भी HR एज HR स्टोर होता है डेटा, वो रहेगा. फिर उसके बाद रहेगा मेरे लीव्स. लीव मैंने कब
और अटेंडेंस बोल सकते हैं, अटेंडेंस मैं हर रोज कितने बजे आता हूँ, इन टाइम, राइट, ये रहेगा इन टाइम, आगे आएगा आउट टाइम, राइट, इससे रिलेटेड। और एक हो सकता है मेरा लीव, कितनी मैंने छुट्टियां ली है, कब लिया है, ऑल द how many leaves I have taken and how it is. Clear? So basically if you observe, अलग अलग शीट्स हमें दिया गया है एक फाइल में, is to store the relevant information। मतलब किसी डिपार्टमेंट, किसी एंटिटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेवेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम अलग अलग शीट्स यूज करते हैं। ओके, रिलेवेंट मतलब पूरे एचआर, मैन पावर और जो एम्प्लॉय के बारे में सारे डिटेल एक फाइल में रहेंगे। फाइनेंस में आप काम कर रहे हो तो फाइनेंस के सारे डिटेल, कितना सेल हुआ, कितना परचेस हुआ, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, लोन्स के कितने डिटेल है, तो सब कुछ एक फाइल में। आप सेल्स में हैं, सेल्स में है तो हर एक सेल्स पर्सन का परफॉर्मेंस एक फाइल में मेंटेन कर सकते हो। नहीं तो प्रोडक्ट वाइज सेल्स, मान लीजिए टायर है, ट्यूब है, राइट, व्हीकल है, स्पेयर पार्ट्स है, हेलमेट, एनीथिंग, relevant information you can store. So why we have given multiple sheets are to store the relevant information. relevant information store करने के लिए हम sheets का यूज कर सकते हैं। ओके, और आपको कुछ नया स्टोर करना है, different information, create a new excel file। ओके, एक नया एक्सेल फाइल क्रिएट कर सकते हो, कैसे, फाइल न्यू, यहाँ पे न्यू ऑप्शन है, देखिए यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हो। आपको कुछ टेम्पलेट फॉर्मूला वगैरह चाहिए तो नीचे थोड़े ऑप्शंस है, ये भी एक्सप्लोर कर सकते हो इफ यू वांट। ओके, एम्प्लॉय एब्सेंस टाइम शीट, वीकली टाइम शीट, ओके, ऑल दिस इनवॉइस, ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन कि शीट्स का कैसे यूज किया जाता है, रो क्या है, कॉलम क्या है। मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे हाईलाइट भी हुआ है F and 8, और इस सेल का एड्रेस आप देख सकते हो F8। ओके, दिस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो का कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट किया, इधर कॉलम कौन सा है N और रो कौन सा है 10, तो दिस बिकम्स N10। ओके, दिस इज अ सेल, और इस सेल के अंदर आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, जैसे नंबर्स, दो इंफॉर्मेशन, और जैसे आप कैलकुलेट करते थे इज इक्वल टू दिस सेल प्लस दिस। बाय द ऑब्जर्व, मैं वैल्यूज ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं सेल के लोकेशन एड्रेस कर रहा हूँ, I10 एंड J10। I10 मतलब ये, राइट, और J10 मतलब ये। देखिए I एंड 10 रहेगा कहीं तो, ओके, दिस इज, यहाँ पे अभी देख सकते हो I, दिस इज 10 एंड दिस इज J और 10, फिर उसका एडिशन मैं कर रहा हूँ, इफ आई इंटर मुझे टोटल वैल्यू मिलेगी। तो ये सेल के एड्रेस पे रेफरेंस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने मान लीजिए इधर वैल्यू चेंज किया तो डायनामिकली फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मान लीजिए मैं वैल्यू स्टोर करता था तो वैल्यू हर बार जाके मुझे चेंज करना पड़ता था। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन कि व्हाट इज सेल्स, व्हाट इज शीट, व्हाट आर डिफरेंट ऑप्शंस, सेल रेफरेंस क्या होता है, फॉर्मूला जब भी बनता है वो सेल के वैल्यू के ऊपर नहीं बनता बट फॉर्मूला लोकेशन के ऊपर बनता है। क्लियर? ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आई नो, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, जो लोग फर्स्ट टाइम एक्सेल यूज कर रहे हैं उनके लिए है। ओके, क्लियर विद दिस? सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टास्क। एज अ डेटा एनालिस्ट वी विल हैव दिस डेटा। ओके, सैंपल सुपर स्टोर का डेटा जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, एक आपका शॉप है, राइट, सो यू आर हैंडलिंग सम स्टोर्स, डीमार्ट हो जाए और सम सुपरमार्केट जैसा, और उस सुपरमार्केट में क्या क्या ऑर्डर्स आते हैं, ये इंटरनेशनल अमेजोन ऐसे कंपनी का डेटा है जो इंटरनेशनली काम करता है, राइट, सो उसके रिलेटेड हमारे पास डेटा है।
सो एंड ऑब्जेक्टिव क्या चाहिए, जो भी मैं मान लीजिए मेरा एक शॉप है सुपरमार्केट, तो मुझे एनालिसिस करके चाहिए कि मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है कि नहीं, मैंने कितना सेल किया, प्रॉफिट कितना किया मैंने, कौन से प्रोडक्ट में मुझे लॉस हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट में मैं प्रॉफिटेबल हूँ, राइट। टू फाइंड ऑल दोज थिंग्स, दीज आर नथिंग बट इनसाइट्स। मैंने यहाँ पे सिर्फ सैंपल POC प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आई हैव टेकन सम डेटा। इसका ओरिजिनल डेटा आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में है। प्रोजेक्ट फोल्डर, आज ग्रुप में आपको एक लिंक आएगा गूगल ड्राइव का, उसमें सारे फाइल्स आपको मिलेंगे जो हर रोज हम फाइल एक्सेल जो भी यूज करते हैं क्लास में, वो सारे फाइल्स गूगल ड्राइव में आपको मिलेंगे। ओके, एज वेल एज रिकॉर्डिंग भी मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग की लिंक भी ग्रुप में आई विल पोस्ट। एंड नॉट ओनली दिस, you will uh, you will get a project folder, मतलब in the Google Drive you will understand day 1, day 2, day 3 ऐसे folders है, and there is one folder called project. So in the project you will have project data set, project report. So that is the file or that is the folder you need to refer to submit a project. Okay, project आपको वो फाइल रेफर करके करना है एंड यू नीड टू सबमिट। क्लियर? Yes, sir. ऑनलाइन? ओके, यस, नो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर एक्चुअल डेटा एनालिटिक्स का वर्क। सो डेटा एनालिटिक्स में क्या, दिस इज व्हाट आई हैव। सो योर प्राइमरी एम इज टू फाइंड अ इनसाइट, बट उससे पहले, ओके, directly you don't have to find anything, you need to follow some process. So process क्या है? Any data set, जो भी data set आपको मिलेगा, it will go through different phase मतलब, so you will start with data understanding. First step है data understanding, okay? Then second step is data formatting. data आपको format करके लेना है। थर्ड स्टेप इज क्विक इनसाइट्स, आपको क्विक इनसाइट्स निकालना है। सो वी विल यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉर्ट, फिल्टर, all these options we will use and we will achieve quick formatting or quick insight. Okay, then fourth step is data consolidation. You need to consolidate the data, मतलब अलग अलग फाइल से, अलग अलग फोल्डर से आपको डेटा कंबाइन करके एक जगह पे लेके आना है एंड देन यू नीड टू एनालाइज। ओके, फिफ्थ स्टेप इज डेटा समराइजेशन, मतलब आपको डेटा समराइज करना है, कंबाइन करना है एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, अंडरस्टैंड द वैल्यूज, ऑल दोज थिंग्स। ओके, एंड फाइनल स्टेप इज ऑटोमेशन। आपने जो जो काम किया है आप उससे ऑटोमेट कर सकते हैं बाय यूजिंग समथिंग कॉल्ड मैक्रोज। ओके, so any data analytics project should undergo these 5 steps. Steps क्या है? Data understanding, data formatting, quick insights, data consolidation, data summarization, and if you want, data visualization and automation. Okay, clear everyone how the cycle goes? मतलब ये डेटा एनालिटिक्स का साइकिल है, आप इसे पूरा फॉलो करोगे तो you will find insights easily. Clear? Yes. So we'll start with data understanding part. Okay, हम data understanding पहले देखेंगे and then we'll continue other details. So what do you mean by data understanding? Can anybody quickly tell me? मतलब data understanding मतलब क्या और क्यों करना चाहिए, बताइए। Data understanding means types of data, कौन से types of data available है। Yes. Okay. Okay. What about others? Data understanding मतलब क्या और क्यों करना चाहिए, और ये चलिए ये बताइए करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
डायरेक्टली डेटा है सर, आप एक काम कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, ग्राफ सिलेक्ट कीजिए, विजुअलाइजेशन हो जाएगा। नहीं तो यही डेटा पावर बीआई में लेके जाइए, कुछ डैशबोर्ड बनाइए, बात खत्म। हमें समझना क्यों है क्या नहीं। सर जब डेटा अंडरस्टैंड करोगे तभी उसका फॉर्मेटिंग या उसका रिपोर्ट बन सकता है ना। अगर कोई कंपनी XYZ नाम की, तो उसके एम्प्लॉय को वो है, उसका आईडी क्या है, उनका डिपार्टमेंट कौन सा है, यदि ये डेटा हमारे पास है तो ये डेटा लेके हम उनका रिपोर्ट बना सकते हैं, उनका सैलरी का या उनका कोई उनके काम का। तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग करना पहले जरूरी है सर। दैट्स व्हाई data understanding is important thing. ओके, यू आर एब्सोल्युटली राइट महेश। सो डेटा अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप जो भी आप विजुअलाइजेशन करोगे और जो भी पावर बीआई का डैशबोर्ड बनाओगे, डैशबोर्ड तो बन जाएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट उस डैशबोर्ड में आपने क्या प्रेजेंट किया है ये समझ में आना चाहिए। मान लीजिए आपने कुछ ग्राफ ड्रॉ किया है, बट वो ग्राफ किस चीज का है, वो क्या सिग्निफिकेंस क्या है उसका, और क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, ये भी जानना जरूरी है। ओके, मान लीजिए आप कुछ टू व्हीलर और फोर व्हीलर के बारे में, आप कंपनी है आपकी और उससे रिलेटेड आप कुछ डेटा एनालिसिस कर रहे हो। अनलेस एंड अनटिल व्हाट इज फोर व्हीलर, व्हाट इज फोर व्हील ड्राइव, टू व्हील ड्राइव क्या है, एसयूवी क्या रहता है, सिडान क्या रहता है, ये जब तक पता नहीं चलेगा, आप एज अ बिजनेस ओनर और एज अ कंपनी को क्या सजेस्ट करोगे? आपको यही पता नहीं कि सिडान क्या रहता है और एसयूवी क्या रहता है, तो आप कैसे बोल पाओगे कि एसयूवी का सेल बढ़ रहा है, सिडान का कम हो रहा है? क्यों कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है, ये कैसे आप फाइंड आउट करोगे, राइट? सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे जाके आपको जस्टिफाई भी करना है इनसाइट जो आपने निकाला है। मान लीजिए आप बोल रहे हो कि आपका बिजनेस कम हो रहा है, ओके, तो ऑब्वियसली पूछेंगे क्यों कम हो रहा है, कौन है जो कम कर रहा है, कौन सा सेल्स पर्सन है जो काम नहीं कर रहा है, कौन सा जो प्रोडक्ट है जो आप बेच नहीं पा रहे हो, ये आपको कैसे पता चलेगा? आप बोलोगे नहीं सर, सिडान का जो मार्केट है उसके वजह से हमारा सेल कम हो रहा है और सिडान टाइप के व्हीकल्स बिक नहीं रहे ज्यादा। अनलेस एंड अनटिल आपको पता चलेगा कि सिडान क्या है, आप एज अ इनसाइट कैसे बताओगे उसे, है ना? सो इट डजंट मेक एनी सेंस। रैंडमली कुछ भी बात करोगे तो इट डजंट मेक एनी सेंस। सो इसीलिए आपको डेटा अंडरस्टैंड करना जरूरी है। डेटा अंडरस्टैंड में क्या रहता है? नथिंग। कॉलम देखिए, कॉलम क्या है, उसमें डेटा क्या दिया है, इतना ही देखना है। ओके, चलिए ऑर्डर डेट है। ऑर्डर डेट इज नथिंग बट जिस दिन ऑर्डर आया, कंट्री, कौन से कंट्री से ऑर्डर आया, रीजन, कौन से रीजन और एरिया, मार्केट इज ऑल्सो समथिंग लाइक दिस, देन प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, कैटेगरी मतलब टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, फर्नीचर है, क्या है, राइट? एंड देन प्रोडक्ट नेम, देन सेल्स, कि कितना सेल हुआ है उस प्रोडक्ट का, कितने क्वांटिटी में हुआ है, डिस्काउंट क्या दिया है हमने, मतलब मान लीजिए 2000 सेल करने के लिए हमने 10% का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट, और इतना सेल करके मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 763। ओके, एंड देन इसका शिपिंग कॉस्ट कितना है, 897, मतलब 800 रुपीज आई इट टेक्स टू शिप द प्रोडक्ट। और ऑर्डर टाइप क्रिटिकल है, हाई है, लो है। सो सम डेटा इज देयर। सो नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू मीन बाय दिस ऑर्डर टाइप, और क्यों दिया है ये डेटा, इसका मतलब क्या है? यस, दिस इज नथिंग बट अ डेटा अंडरस्टैंडिंग, राइट? ओके, आपने अमेजोन यूज किया है, 1 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी, कब यूज किया है? सो व्हाट इज दैट इज नथिंग बट ऑर्डर प्रायोरिटी। 1 डे डिलीवरी करना है मतलब क्या? प्रायोरिटी ऑर्डर, राइट? क्रिटिकल ऑर्डर।
2-day डिलीवरी है तो लो प्रायोरिटी ऑर्डर, समथिंग लाइक दिस. So that is nothing but a order priority. Understood? What do you mean by order priority? Then दैट मीन्स डिमांड ज्यादा होगा तो प्रायोरिटी ज्यादा होगी ना सर. sorry, डिमांड, इफ डिमांड इज हायर देन प्रायोरिटी इज हायर. not sure. ऐसा भी नहीं हो सकता, not मतलब ऐसा होगा यही सही नहीं है, बट डिपेंड करता है. मान लीजिए आपको अर्जेंट डिलीवरी करना है, 1 day डिलीवरी, और जेप्टो, स्विगी क्या करता है 10 minutes डिलीवरी. तो स्विगी के सारे ऑर्डर्स क्या है, क्रिटिकल है, क्योंकि ऑन टाइम डिलीवर करना है आपको विद इन 10 minutes. अमेजोन के भी प्रोडक्ट ऐसे है कि जो आने में, फर्नीचर ऑर्डर कीजिए आप, टेबल वगैरह, तो क्या करते हैं 10 दिन लेता है डिलीवरी के लिए. दैट ऑर्डर प्रायोरिटी उसका लो है, राइट. We are talking about prioritizing something. We are not talking about demand or value of that product. Okay. Okay, okay. Yes, sir. And same goes with product, country, market, country, region, market. कौन से कंट्री से आया है, कौन से रीजन से आया है, कौन से मार्केट से. These are nothing but, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, पुणे डिस्ट्रिक्ट, राइट. पुणे, दिस इज पुणे, एंड पुणे डिस्ट्रिक्ट किस में आता है, स्टेट महाराष्ट्र में आता है, राइट. महाराष्ट्र स्टेट, और महाराष्ट्र किस में आता है, इंडिया में. सो सिमिलरली दिस वर्क्स. ये है कंट्री, इसके यहाँ पे, देन जैसे हमारे स्टेट है, दिस बिकम्स अ रीजन, और इंडिया जैसा स्टेट कंट्री है, दिस बिकम्स अ माय मार्केट. ओके. 2-3 कंट्री मिला के एक रीजन होता है, 2-3 कंट्री मिला के एक रीजन, 2-3 रीजन मिला के एक मार्केट. क्लियर. ये हायरार्की है. That's why this data is here. ऐसे क्यों होता है? Can anybody quickly tell me? मोस्टली कंपनी में आपके हायरार्की रहता है, मतलब मैनेजर रहता है, उसके ऊपर सीनियर मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, राइट, कंट्री हेड. वैसे ही बड़े कंपनी में जैसे मल्टी एमएनसी रहता है ना, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और मल्टीनेशनल कंपनी, राइट. तो इसमें क्या होता है, अलग अलग कंट्री में एक हेड रहता है, कंट्री हेड उनको बोलते हैं. और ऐसे मान लीजिए 120 कंट्री में उनका बिजनेस है, तो 120 कंट्री हेड रहते हैं. तो इन सबको रिपोर्ट करना टू कंपनी ओनर, ये पॉसिबल नहीं है ना. एक आदमी को ये लोग इतना रिपोर्ट करेंगे तो 120 दिन लगेंगे हर एक कंपनी में, हर एक कंट्री में क्या चल रहा है ये देखने के लिए. इससे बेटर क्या करेंगे, एक काम करते हैं, रीजन बनाते हैं. रीजन मतलब ये देखिए, ओशियाना रीजन में ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड है, राइट, ओशियाना. देन और 2-3 कंट्री मिला के आप एक रीजन बना सकते हो. ओके. और 2-3 रीजन मिला के मार्केट बना सकते हो. मतलब ओशियाना रीजन है एशिया पैसिफिक में, साउथ ईस्ट साउदर्न एशिया रीजन है एशिया पैसिफिक में, वेस्टर्न एशिया है एशिया पैसिफिक में, राइट. तो 120 जो भी कंट्री हेड है, ये सब मान लीजिए 40 रीजन हेड को रिपोर्ट करेंगे, राइट. एंड देन ये 40 5 मार्केट हेड को रिपोर्ट करेंगे, है ना. मार्केट हेड, ये हो गया मार्केट हेड, राइट. ये हो गया मार्केट हेड. क्लियर. अभी ये 5 लोगों का एज अ कंपनी का ओनर और एज अ बिजनेस ओनर, मैं ये 5 लोगों से बात कर सकता हूँ, आराम से पता कर सकता हूँ कि मेरा बिजनेस कैसा है, क्या है, कौन से कंट्री में इशू आ रहा है, कौन सा लॉस मेकिंग है, कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट मेकिंग है. So that's why this data is also called as hierarchical data. Hierarchical मतलब एक के अंदर एक, जैसे आपका फैमिली ट्री होता है, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, राइट, सन, नेफ्यू, मतलब फैमिली ट्री जैसा ग्रैंड पेरेंट, ऐसे ट्री स्ट्रक्चर रहता है. और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे बिल्डिंग हम बनाते हैं, वैसे ही डेटा जब बनता है उसको बोलते हैं हायरार्की. सिमिलर हायरार्की आपको दिखेगा कैटेगरी एंड सब कैटेगरी में.
मतलब फर्नीचर में देखिए आप, टेबल भी आ रहा है, चेयर है, टेबल है, बुक केस है, सारे फर्नीचर में है। टेक्नोलॉजी में कौन है? मोबाइल है, कॉपियर है। सो मान लीजिए 7 से 8 टेक्नोलॉजी रहेंगे, सब टेक्नोलॉजीज कितने रहेंगे? 20 या 25, समथिंग लाइक दिस। अगेन हायरार्की ऑफ द डेटा। क्लियर? अंडरस्टूड? बाकी के कॉलम आपको तो पता ही है, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, शिपिंग कॉस्ट, ऑर्डर प्रायोरिटी। सो जो हमने अभी सीखा कि हर एक कॉलम क्यों इंपॉर्टेंट है और हर एक कॉलम में कौन सा डेटा है और उस डेटा का बिजनेस के साथ क्या रिलेशन है, राइट? कंट्री हेड के लिए कंट्री का कॉलम है, रीजन हेड के लिए रीजन का कॉलम है। All these things are available. So this is nothing but a data understanding step. Clear everyone? Data understanding क्या रहता है? Same understanding I want you to do it for HR. एक HR का डेटा है, ओके? ये देखिए, इस पे डेटा अंडरस्टैंडिंग कीजिए कल एज अ होमवर्क, ओके? दिस फाइल्स आर अवेलेबल इन डे 2 क्लास। डे 2 का जो क्लास है उसमें अवेलेबल है ये सारे फाइल्स। क्लियर? ऑनलाइन क्लियर एवरीवन? आई नो थोड़ा 4-5 मिनट हमने लेट किया है। Okay, people started living already. Okay, not an issue. Clear homework सबको? Yes, sir. ठीक है फिर, I will share details in the group immediately. सारे recorded आपको lectures मिलेंगे online. Okay, you can follow. ठीक है, so thank you, thanks a lot, Dheeraj, Deepak, Mahesh. Yes. Good night, sir. Good Thank you, night. sir.